To all students, good morning. Well, this is Namrata Bajaj, professor in Department of Humanities and Science, School of Engineering, and we welcome all our students, newly admitted students, with a very, very warm welcome. Okay, so today, as you are aware, we have pre-induction program before we induct you to the physical classes or online classes. We wish that you should be getting acclimatized to our university systems and to certain things which are beyond classrooms. And for that, we are joined with one of our professor, Dr. J. Prakasha Reddy. And before I handle the charge to him, I wish to introduce him so that he can take forward to you for his session on human values and ethics, which actually is not the part of course, be it MSc, BSc or BTech. Yet it is very important because after all, we are human beings first and students next. Okay, so before I give charge to Prakasha Reddy sir, good morning and welcome to the Thank session. you. Good morning, ma'am. Yeah, and anytime we are expecting Dean School of Science, Bharti Madam, Yes. And Dean School of Engineering, Amish Vyas sir, anytime to join with us, Sure, and so that you can also see sir. So before I begin, and invite sir to take the podium, I would like to share his profile. Sir, Prachi, can I be given rights to share? If not, it's okay. Yes, ma'am, I can. Just a second. Yeah. So you can, ma'am, share now. Okay, thank you. Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, thank you so much. Here comes introduction of Prakasha Reddy sir, who is with us and as a speaker for today. Sir has completed his PhD in chemistry from CSISR NCL, which is very prestigious institute if you are familiar with, or else Google it, that what NCL or what CSIR stands in the field of science. Okay, he is again MSc in chemistry from Bangalore University. His area of expertise includes inorganic chemistry and material chemistry. Sir's academic credentials include his postdoctoral, which he has completed from USA and UK, both. He is also GRF from CSR and SRF, and he is Marie Curie Research Fellow, which is again a very prestigious achievement. He has been granted from ICDD to attend conference in UK also. I have not yet updated his credentials when it comes to paper publications, which is beyond 20. Sir, correct me if I go wrong. Yeah, no problem. In various national and international journals. Yes. The detailed credentials will be shared with you on the first day of induction on 1st by Dr. Rajesh Bhosle. But I act contract because this list of achievements and credentials is very huge. So I stop here, pause here, and invite Prakasha sir to take the podium and start this session on human values and ethics for our students. Thank you, sir. Thank you very much, madam. Thank you for your kind introduction. And then let me share the screen. Well, I see hands raised by Nikita, Rutvik. If there is any questions, please, you can pose on. Can you see the screen, ma'am? Yeah, yes, sir. Yes. Thank you. Thank you very much, ma'am. You can go for full screen mode, sir.
Yeah, is it? I think. Yeah, now Yeah. now it is full screen mode. Yes, sir. So, Okay, sir, there is a request which has come up definitely. from Mr. Virat Mewada. He says that please speak in Hindi also. Yes, we will take care of that also. Sir struggles with Hindi, but then he's yet good at Hindi. So Prakash sir, good that students are interactive and as well expressive, that they express their feelings. That's exactly what we want, madam. Yes. Yes. And in addition to Hindi, madam, I just have I just put some of the Gujarati wordings as well, so it'll be That's easy. great, sir. That's great, sir. Thank you, madam. Good morning to everyone, lovely students. So we'll have a great time. We'll have a very, very fun time in the university when you come back here. The university, definitely, like we all guarantee you that we'll have a great time in the university. So just as a part of induction program, जैसे ये हम लोग पहले कोई भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन होने से पहले अभी ये कंपल्सरी हो गया है कि ये इंडक्शन प्रोग्राम लेना है करके. So that is part of the curriculum. Actually, it's going to be part of the curriculum. बाद में अभी 1-2 साल 5-6 साल के बाद डेफिनेटली ये करिकुलम के साथ साथ होगा ये इन ह्यूमन वैल्यूज और दिस कंप्लीट कोर्स. ये जाके अभी कुछ IITs में हो गया है, कुछ यूनिवर्सिटीज में हो गया है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, सब में ये क्रेडिट कोर्स हो गया है. एक्चुअली दिस इज नॉट जस्ट ए नॉर्मल विदाउट क्रेडिट, ऐसा नहीं है. सो क्रेडिट कोर्स हो गया है. सो हाउ इम्पोर्टेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि स्टडीज के साथ साथ ये आप लोगों को सीखना है. सो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना और समझाना, तो इतना ही होता है ये ह्यूमन वैल्यूज जो भी कोर्स होता है. सो आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट है नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं जितना मैं समझ सकता हूँ या जितना मैं समझाऊँ आपके लिए, आप लोगों के लिए समझाने के लिए ट्राई करूंगा. सो दैट्स व्हाट इज द main content, main like speech why I'm going to have today. You cannot not a kind of speech, लेकिन just one-to-one interaction जो होते हैं ना स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में, ये exactly ऐसे ही होता है. So try to follow it up. जहाँ पे भी आपको डाउट होगा, please try to ask me. Not a problem at all. You can anytime interrupt me और हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे. तो ये सब्जेक्ट के साथ ये इंडक्शन प्रोग्राम भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो पार्ट ऑफ दैट वन ह्यूमन वैल्यूज HU इंटू यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू जो होता है UHV, उसमें एक पार्ट होता है ये लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, सब लोगों के लिए एक्चुअली. सो एज ए टीचर्स वी नो लिटिल बिट बेटर and with experience you will also get the same thing. लेकिन अब जब स्टूडेंट्स होंगे तो आप लोगों को ये सब अच्छे से समझना है सब्जेक्ट के साथ साथ. ठीक है, सब्जेक्ट भी पढ़ना है साथ में. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से इस सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोग सोसाइटी में रह के, फैमिली में रह के, इंडिविजुअल होके ये सब आप लोगों को जानना ही है. ठीक है. सो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसमें इतना ही है. Try to understand something, कुछ समझना, समझाना एंड वो प्रैक्टिस करना. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इतना ही होता है. इसलिए मैं साथ में गुजराती वर्ड में भी लिखा हूँ वहां पे, आप लोग समझ सकते हैं इजिली. अंडरस्टैंड, समझाओ और प्रैक्टिस करो. तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हम लोग ये UHV में पढ़ते हैं और ये इंडक्शन प्रोग्राम में होता है. Just give me a second. Yeah. Harmony actually क्या होता क्या है? What does harmony mean exactly? So this harmony means it's something like जैसे आप लोग कोई भी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लिया, अगर अच्छे से कीबोर्ड प्ले किया तो हम लोग अच्छे से म्यूजिक सुन सकते हैं. So if you play the musical instrument जो भी होता है properly, then we will have a pleasing sound. जैसे अच्छे से सुनना, और कभी कभी लगता है ना हमको ये म्यूजिक कितना अच्छा है और सुनेंगे करके,
So that's exactly is the harmony. So harmony सबके साथ गए तो then you will have a great life. You will have a happy life. You will have a very pleasing life. You will have a enjoyment in life. So that's what exactly is the harmony. So harmony के साथ रहेंगे, so then you will have a very, very happy life. So that's what exactly is the meaning of this UHV, or it's a part of this harmony is a part of this UHV values जो भी होता है. Now, how we can do that one? हम लोग वो कैसे अचीव करेंगे, कैसे अचीव कर सकते हैं? इसमें बहुत सारे वेस है. सो हर एक आदमी को वी हैव टू थिंक इन दैट डायरेक्शन, और हमको सर्च करना है कि ये कर सकते हैं तो अगर ये ऐसे हम लोगों को होगा, यानी इफ यू डू समथिंग बेटर यू विल हैव ए बेटर लाइफ. लाइफ इन द सेंस यहाँ पे हैप्पीनेस, बस और कुछ नहीं है. लाइफ माने यहाँ पे बस हैप्पीनेस होता है, नॉट कोई यहाँ पे पैसों का नहीं है, कोई मनी या कोई और लग्जरी इंस्ट्रूमेंट्स, लग्जरी व्हीकल्स या कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं. यहाँ पे हैप्पी लाइफ होता है, इतना ही होता है. सो डोंट वरी अबाउट मच अबाउट द मटेरियलिस्टिक पार्ट, वरी अबाउट द हाउ वी कैन मेक आवर लाइफ हैप्पी. सो दैट्स व्हाट इज exactly the meaning of this, the UHV. Complete whole topic of the bottom line of the UHV is how to make life happy. That's what is the meaning. So this, for this one, हम लोग हर एक we have to search what way we can go ahead and make our life happy. So for this one, we will have many things in action, many things we need to think about this one, and it is quite easy. ऐसा नहीं कि कुछ रॉकेट साइंस जैसा ऐसे कुछ करना है या कुछ हम लोग हमको लाइक हमेशा 24 आवर्स सोचना है कुछ करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं. इट्स वेरी वेरी इजी. सो हम लोगों को जस्ट प्रैक्टिस करना है, बस प्रैक्टिस किया तो हो जाएगा. सो दैट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस यूएचवी, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज. एंड पार्ट ऑफ दिस वन इज इंडक्शन प्रोग्राम. इसमें हम लोग हार्मोनी के बारे में जान रहे हैं. ठीक है. सो इफ पीपल आर लिविंग इन हार्मोनी विथ ईच अदर, दे आर लिविंग टुगेदर पीसफुली rather than fighting and arguing. ये है सेंटेंस, इजीली सेंटेंस किसी को समझना है. जैसे हम लोग हार्मोनी में रहेंगे तो देन हम लोग खुशी से रह सकते हैं. हम लोग विदाउट एनी झगड़ना, आर्ग्यूमेंट लेना, ये सब नहीं होता है. दैट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोनी. सो हार्मोनी क्या होता है? सो दैट इज द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो, I can't move the slides, please. Yeah. Okay. Now you try to understand things in different ways, how we can achieve the one we want in life. So it's always self-exploration. हम खुद हमको ढूंढना पड़ेगा. यहाँ से कहीं यहाँ पे वहाँ पे लिखा नहीं होता है या कोई और बोलने का जरूरत नहीं रहता है. बस यहाँ पे वेरी सिंपल है और हम खुद ढूंढना है. सेल्फ एक्सप्लोरेशन बोलते हैं ना उसको. जैसे हम लोग एक सब्जेक्ट कोई पढ़ रहा है या कुछ बाहर जा रहा है, कुछ ड्राइविंग कर रहा है, कुछ और अननोन प्लेस में अगर चले गए तो हमको खुद एक्सप्लोर करना है कि कहाँ पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो डेस्टिनेशन कैसे रीच करेंगे. सो दैट्स एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही है, सेम. सेल्फ एक्सप्लोर करना है हमको. और ये कर सकते हैं हम लोग जब पूरे नेचर, हार्मोनी, ये सब के बारे में अगर जान लिया. सो इफ यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस नेचर, देन डेफिनेटली our life will be very peaceful and happy. Like you can lead a very happy life. How this can happen? Everyone, they have their own aims, objectives, purpose in life. So all these things will be there. So to do this one, to achieve particular goal, to achieve particular aim, we need to have certain planning. So in order to have planning, then we need to think of how we can achieve the planning. So final aim is to have peace and happiness. हर एक आदमी, हर एक, even including the animals, they always strive for happiness. ऐसे नहीं कि कोई है नहीं इस दुनिया में कि जिसको खुशी नहीं चाहिए. नहीं,
it doesn't want happiness. So everybody needs happiness. So that is the goal of the life. So happiness is always related with the harmony. हम लोग नेचर कैसे हार्मोनी नेचर के साथ रहेंगे, so that is always related with the happiness. तो हम लोग देखेंगे कैसे ये सब होता है करके. So पहले if you try to understand few things at least, then you will come to know easily what is happening and what I am trying to say when it comes to nature. So harmony at human being level, हम लोग हार्मनी फैमिली के साथ, हार्मनी विथ सोसाइटी. अगर ये तीनों अचीव करना है, देन आप लोगों को हार्मनी विथ नेचर और एग्जिस्टेंस के साथ आप लोग जाना ही है. इफ यू वांट हार्मनी विथ इन द ह्यूमन बीइंग, जैसे हम लोग सब है यहाँ पे एंड हम सब के साथ लाइक विथ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, इफ यू वांट हार्मनी देन हम लोग नेचर के साथ रहना ही है. सो देयर इज नो अदर ऑप्शन. सपोज इफ यू डोंट वांट टू लिव विथ नेचर, अगर है ऐसा नहीं है हम लोग अकेले रह सकते हैं, तो डेफिनेटली ये सोचना है कि वो कभी भी हार्मोनी नहीं होगा. अगर हार्मोनी नहीं है तो कभी भी हैप्पी अचीव नहीं करेंगे. सो दैट इज फॉर श्योर. तो आप लोगों को ये चारों सोचना पड़ेगा. एंड ये कैसे होगा, हाउ दे आर गोइंग टू बी इन नेचर, आप लोग थोड़ा लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड. देयर आर फ्यू थिंग्स, चार जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. कुछ मटेरियल ऑर्डर है, हम लोग थोड़ा सा और डिटेल जाएंगे. एंड देन वी हैव प्राणिक ऑर्डर, दैट इज प्लांट. जैसे नेक्स्ट कम्स एनिमल ऑर्डर, जीव अवस्था. एंड देन वी हैव एट द एंड ह्यूमन ऑर्डर. सो देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन द मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर. हर एक इसमें, जैसे हम लोग पहले से बचपन से पढ़ते हैं ना, जैसे एनिमल, वी कम अंडर एनिमल किंगडम, ठीक है. बट लेकिन एनिमल जो होते हैं एंड ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो दोनों में डिफरेंस इज वेरी मच लार्ज. सो एनिमल्स डजंट हैव, दे स्ट्राइव ओनली फॉर द फूड एंड सम अदर नीड्स. बट बीइंग ह्यूमन बीइंग, हम लोगों को वहां पे लाइक वी हैव लिटिल बिट मोर थिंकिंग कैपेसिटी देन द अदर थ्री. एंड ऑटोमेटिकली हम लोगों को और एक्स्ट्रा जो भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं, हम लोग ये सब कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस, मीन लाइक द डिफरेंस बिटवीन एनिमल ऑर्डर एंड द ह्यूमन ऑर्डर. सो नाउ बीइंग ह्यूमंस, हम लोग ऑलवेज हमेशा टॉप में रहते हैं इन द पिरामिड. लेकिन when you are at the top, you will have the responsibility, more responsibility. जैसे ये नॉर्मली होता है ना, जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन ले लेना, हमारे हाई इंस्टीट्यूशन ले लें, इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी. जैसे पहले वर्कर्स रहते हैं, then you'll have the other members, and then we have the deans, and then we have the directors, and then we have the CMD. So जैसे एक ऑर्डर रहता है, so when that order comes, CMD सर है, so then he will have the more responsibility towards the IU, I mean university. So जैसे similarly like that, यहाँ पे जो भी 4 orders है यहाँ पे, so हम लोग जहाँ पे human being ऊपर रहते हैं, तो automatically we'll have the more responsibility towards living in the society. Now when it comes to these orders, जैसे physical order, जहाँ पे पहले किया था, लाइक जिसका बोला था ना, पदार्थ अवस्था. सो दिस फिजिकल ऑर्डर जैसे हम लोग नॉर्मली विल कम अक्रॉस इन लाइफ. जैसे मिट्टी होता है, मिट्टी के अंदर बहुत सारे मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ वोर. देन दिस वोर कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द सॉइल एंड वी विल यूज इट. सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस. जैसे फिजिकल ऑर्डर के बाद प्लांट ऑर्डर होता है. सो प्लांट ऑर्डर, ये सॉइल से, मेटल से लेके वो प्लांट्स अपने आप वो ग्रो होगा. यहाँ पे देखना, सॉइल एंड मेटल्स जो भी है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. सॉइल में जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स, मेटल्स होते हैं, वेरी रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स. एंड देन एनिमल्स, थर्ड ऑर्डर पे आता है एनिमल्स. एनिमल्स जीने के लिए, एनिमल्स दे वांट टू एग्जिस्ट, उनको बहुत सॉइल भी चाहिए
प्लांट भी चाहिए, एंड देन कम्स ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग देख लेना, यू कैन सी क्लियरली फिजिकल ऑर्डर से रिलेटेड है, प्लांट ऑर्डर से रिलेटेड है, एंड एनिमल ऑर्डर से। सो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, बीइंग ह्यूमन बीइंग you need to go very well in harmony with the three orders of the nature. So हमेशा accept करना है कि human beings इनके साथ में ही रहना है, ठीक है? तो हमेशा हमेशा के लिए साथ में रहना है। अगर साथ में नहीं रह रहे हो, then that is the end of the human being a human, like human existence, I would say. So always go with these three orders, then the human being can live very happily. So you fulfill these three orders, that will be the prosperity. So when you are talking about relationship, when you are talking about existence, when you are talking about going together with nature, we always see anytime, any given place, exploitation of some things. ठीक है? So exploitation in the sense, हम लोग जितना चाहिए उतना नहीं लेते हैं, जितना चाहिए उतना नहीं यूज करते, हमेशा बहुत चाहिए, बिकॉज क्योंकि ह्यूमन बीइंग थोड़ा बहुत थिंकिंग कैपेसिटी है, इसीलिए वो हमेशा चाहता है कि टॉप में रहूं एंड ट्राई टू एक्सप्लॉइट अदर थिंग्स। इट कैन बी नेचर हो सकता है, इट कैन बी प्लांट हो सकता है, इट कैन बी एनिमल हो सकता है, इट कैन बी मटेरियलिस्टिक, जो भी, ऑलवेज एक्सप्लॉइटिंग। जैसे सबको गोल्ड बहुत ही पसंद है, गोल्ड कोई नहीं छोड़ेगा, नहीं, लेकिन एवरीबडी वांट्स गोल्ड, लेकिन अर्थ जितना है अर्थ में उतना ही गोल्ड रहेगा, यू कांट एक्सपेक्ट मोर। जैसे गोल्ड यू कीप एक्सट्रैक्टिंग, एक टाइम के बाद वो गोल्ड खत्म होगा, देन यू विल हैव प्रॉब्लम्स। जस्ट सपोज इफ गोल्ड भी ठीक है, गोल्ड भी अगर नहीं रहा तो भी फिर भी लाइक वी कैन लिव, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, इफ यू कीप एक्सट्रैक्टिंग देम you will face, I mean, you in the sense, we all, हम लोग definitely will have a very difficult time. So इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि कोई भी चीज को लेके, कोई भी नेचर को लेके, whatever the things in the nature, एक्सप्लॉइट मत करना, जितना चाहिए उतना यूज करना। जैसे सिंपल एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, और एक डेली हम लोग ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो हम लोग हर दिन सोचते हैं कि या कुछ नया ड्रेस पहने, कुछ नया कर ले, कुछ अच्छे से ड्रेस पहन के जाना। लेकिन अभी हमारे पास एक सपोज लाइक 7-8 ड्रेस है, दैट इज एनफ टू हैव अ वेरी पीसफुल लाइफ। ड्रेस से लेके क्या करना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ। सपोज इफ यू हैव सम 50 or 20-30 ड्रेसेस, वो ड्रेस पहनने में आप लोगों को टाइम लग जाए कि ये ड्रेस पहनो कि वो ड्रेस पहनो, ये ले लो, वो ले लो, कौन सा ड्रेस पहनो, कैसे दिखो, इसमें टाइम जाएगा। तो इट्स जस्ट ओनली वन एग्जांपल आई एम गिविंग यू। सपोज इफ यू हैव सम 3-4 ड्रेसेस, 5-6 ड्रेसेस, एक फटाक से ले लो, पहन के चले जाओ, बस हो गया। सो आपका टाइम भी बच जाएगा एंड यू विल नॉट बी मच मेंटली स्ट्रेस, और कुछ इसमें कुछ ज्यादा सोचने का नहीं रहता है। ऐसे सोचने के लिए बहुत सारे रहता है, सब्जेक्ट कुछ और नया करें, वो डायरेक्शन पे सोचना है, नॉट लाइक विच ड्रेस आई हैव टू वेयर, व्हाट ड्रेस। वैसे ही अगर आप कोई पसंद कर रहा है, ड्रेस से कोई पसंद नहीं करेगा, वो भी मैं बोल रहा हूँ। स्टूडेंट्स प्लीज लिसन केयरफुली एंड प्रॉपरली, so this is very very important, though it looks थोड़ा फनी है, लेकिन I always take my lectures as a funny only, but it always has some meaning. So आप कोई भी आदमी किसी को लाइक करेगा, it can be student level, it can be teacher level, it can be between teacher and student, it always the person who is, how the person is, कैसा है आदमी, कैसा है, like he is very honest, very good, very helpful, ये सब की वजह से एक और एक आदमी लाइक करेगा, not in any kind of other aspects. So please always remember, in any aspect, in any relationship for that matter, so try to think in that way and you will have a very very peaceful life. And sometimes
ड्यू टू लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। जैसे हमको कुछ समझने के लिए लाइक वी आर नॉट वेरी मच थरो इन द पर्टिकुलर थिंग, देन आल्सो यू विल हैव सम प्रॉब्लम्स। सो ये सब लेके हम कहाँ पे पहुंच गए हैं? वी हैव लॉट ऑफ पोल्यूशन, जैसे एग्जांपल दिया ना, जस्ट प्रोडक्शन ऑफ ए ड्रेस, इतना ही इंडस्ट्री में एक ड्रेस प्रोडक्शन होने के लिए इतना आसान नहीं है। पहले वो कॉटन यू हैव टू वेयर लाइक ग्रो करना है, वो कॉटन ग्रो करने के लिए किसान को कितना मेहनत करना पड़ेगा। देन दैट गोज टू इंडस्ट्री, वहां पे ब्लीचिंग, वहां पे बहुत सारे डाइस, बहुत सारे कलर्स यूज करना पड़ेगा। ये सब जाके इट इज गोइंग टू मिक्स अप विद द वाटर बॉडी, नॉट प्रॉपरली, इफ इट इज नॉट इवन इफ इट इज अच्छे से अगर following all the conditions of drying, all the conditions of filtering the dyes, colors, everything, फिर भी थोड़ा बहुत जाएगा ये वाटर बॉडीज में। अगर वाटर बॉडीज में एक बार गया, वो अगेन इट इज रिसाइकल टू द ड्रिंकिंग वाटर, एजर प्लांट्स और एनिमल्स। अगर वहां पे एक बार एंटर हो गया, देन इट विल रिसाइकल अगेन इन द नेचर। सो ऐसा कुछ होना नहीं है। इट इज सिंपल एग्जांपल, ऐसे सर बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे और एक एग्जांपल, कार, यू टेक कार इफ यू वांट, देयर इज नो नीड ऑफ टेकिंग 2-3 कार्स अनलेस इट इज रिक्वायर्ड। सपोज अगर चाहे तो ले सकते हैं, बट अगर घर पे इसे पार्किंग कर लिया और एक कार यूज कर रहे हैं, क्यों? देयर इज नो नीड। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से, सम फ्यू एग्जांपल्स। सो जस्ट डोंट ओवर एक्सप्लॉइट द नेचर। सो दिस विल लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स। एक दिन आएगा कि कभी कभी हम लोग लायन टाइगर को देखने के लिए नहीं मिलेगा, इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स वो भी नहीं मिलेगा। एंड दिस विल लीड टू पोल्यूशन, लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, थ्रेट्स ह्यूमन रेस ऑन द अर्थ। सो ये सब आपको पता ही है, वी नो वेरी वेल, लेकिन इसके लिए कुछ सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। सॉल्यूशन इज आल्सो इजी। सो हम लोग वो डायरेक्शन पे सोचेंगे, देन यू विल हैव अ ग्रेट प्रॉस्परस लाइफ। So these are all again 4 things हम लोगों को सोचना है। Plants, sorry, पहले soil, and then plants, then comes animals, and then human beings. So हम लोग human beings being the top, we have to think of all the 3 matters. So there are many other factors that goes into the picture, and you need to be careful. We don't need to be show up any wretchedness, the self I, मैं ही करूंगा, मैं ही कर सकता हूँ, ये सब नहीं चाहिए। So it should be as a group. So if you go with the group, you will be like you can achieve many things, you can do it. So students, आप लोगों को मैं स्पेशली बता रहा हूँ, हमेशा के लिए आप लोग ग्रुप में काम करना। Don't do anything individual. I mean, you can do certain things, but अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो you will achieve a lot. So always remember these things and proceed. And then don't show any time kind of cunningness, कि किसी को चीट करे, किसी को नीचे करे, या किसी को लाइक ऐसे फिर कुछ लोग दिखाते हैं जैसे कुछ वो किया नहीं, मैं सब कुछ किया। So don't show those things. Always be in the group. You will achieve a lot, and you will feel that happiness also after achieving it. Then cruelty. This cruelty comes in the case of animals, but that is only for their food. That is natural thing. But लेकिन when it comes to human beings, हम लोग नहीं चाहिए, फिर भी हम लोग cruelty पे will be there in that line. So these things you don't do, and then it will be related to the harmony. So being human, we need to have perseverance. That is very hardworking होना चाहिए, always hardworking in anything. Maybe it can be, should be brave enough to do those things. We are generous. We should be generous to do those things. So all those things हमको we have to follow, then we will be in the harmony in nature. तो यहाँ पे clearly
यहाँ पे दिखा रहा हूँ, like you can clearly see the human order in the pyramid. ऊपर when you place the orders, human will be in the top order. तो यहाँ पे arrow marks दिखा है, clearly you can see. जैसे human being यहाँ पे है, एक मिनट, so being human order यहाँ पे है, followed by, I mean like down we have animal order, plant order, physical order. प्लांट ऑर्डर होने के लिए जस्ट ओनली फिजिकल चाहिए, एनिमल के लिए प्लांट और फिजिकल चाहिए डेफिनेटली, लेकिन जब ह्यूमन बीइंग आएंगे, एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, फिजिकल ऑर्डर सॉइल एंड अदर स्टफ जो भी होते हैं इन द सॉइल, वो उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है. सो हमेशा बीइंग एट द टॉप ऑफ द पिरामिड, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज 3 थिंग्स. How we can exist in the nature, how we can go along with the nature. So there are few things that also you need to learn. ये एक बार अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस हो गया, सपोज हम लोग पदार्थ के साथ, प्लांट्स के साथ, एनिमल के साथ, एंड देन नेचर इंक्लूडिंग एवरीथिंग, अगर उनके साथ एक्सेप्टेंस हो गया, देन ऑटोमेटिकली हार्मोनी आ जाएगा. अगर ये एक्सेप्टेंस ये एक बार अचीव कर लिया, देन यू विल बी सक्सेसफुल एज एन इंडिविजुअल. इंडिविजुअल के बाद फैमिली, फैमिली के बाद सोसाइटी. सो पहले हमको इंडिविजुअल पे लेवल पे सोचना है. सो इफ यू आर हैप्पी, आसपास लोग हैं जो वो हैप्पी होंगे. अगर आसपास लोग हैप्पी है, they are खुशी से रह सकते हैं, then society as a whole, India or in the world complete. I mean, go a little bit above, like beyond India, world, and then earth. So everything can be prosperous, like everything can go in a very well paced manner. So individual के बारे में सोचना है, अगर और हर एक आदमी, and family level, then society level, ये हम तीनों को बारे में सोचना है. अगर ये तीनों के बारे में सोचना है, then we will have to think about the individual, everything at individual level. जब नेचर जैसे सॉइल, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, नेचर के साथ एग्जिस्टेंस हो रहा है, हम लोग क्यों नहीं हो सकते? दैट इज द क्वेश्चन. यस, वी कैन डू, बट वी नीड टू फॉलो सर्टेन थिंग्स. लाइक जैसे मैं डिस्कस किया था ना, वैसे एक स्टेप बाय स्टेप इफ यू फॉलो, देन यू विल हैव at least to some extent you will have a great life, you will have a very happiness in life. So ये सब होने के लिए you need to fulfill the nature's philosophy, nature's existence, nature's coexistence. I mean coexistence with all the animals, human beings, plants and everything. यहाँ पे कुछ ज्यादा सोचने के लिए है ही नहीं यहाँ पे. So this is very simple. Just go ahead and you will have great things. So यहाँ पे कुछ मैं आपके लिए शेयर करना चाहता हूँ, especially only for the students. As a faculty, as a teachers, we know these things and we are trying to follow. And आप students जो है वो you have to follow these. आप लोग सब सुने होंगे द वर्ड कैंसर. ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आज की एटलीस्ट टाइम पे, दिस 21st सेंचुरी, ऐसे नहीं कि कोई भी कैंसर के नाम सुना नहीं होंगे, क्योंकि कैंसर ऐसे फैल चुकी है सोसाइटी पे. हर एक हमारे फैमिली में हो सकते हैं, या नहीं तो फ्रेंड्स की फैमिली में, नहीं तो डिस्टेंट रिलेटिव्स के फैमिली में हम लोग ये नाम हम लोग डेफिनेटली सुने होंगे. कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई पर्सन, वो लोग गुजर गए होंगे कैंसर की, बिकॉज ऑफ कैंसर. लेकिन ये होता क्यों है? व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई दिस इज स्प्रेडिंग सो फास्ट?
This is quite common, like if you have a cancer, like very rarely, in the society everything is common. If you have a very rarely thing, but इतना फैल चुके हैं कि इतना फैल चुके हैं, this has become a big threat in the society. और मेन थिंग क्या है कैंसर? इट इज अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल. आप लोगों को पता ही है कि अबनॉर्मल ग्रोथ क्यों होता है. दिस ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ द मेनली यूसेज ऑफ केमिकल्स. हम लोग इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, इतना से ज्यादा हर्बिसाइड्स, इतना ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं. ये सब जाके साइकिल होगा नेचर पे. हम लोग ये सब फूड खाना ही है, वी हैव टू ईट, उसमें कुछ ऑप्शन ही नहीं है. देन इट विल एंटर द बॉडी स्लोली एंड सेल के ग्रोथ अबनॉर्मल होगा. ये होगा जाके कैंसर. हम लोग ये मिनिमाइज भी कर सकते हैं. जैसे नेचर पे बहुत सारे इंसेक्ट्स है, पेस्ट्स है, हेर्ब्स है. जहां पे इंसेक्ट्स है, हम लोगों को इतना ही सोचना है, इंसेक्ट्स हैव द राइट टू लिव ऑन द अर्थ. ठीक है, इंसेक्ट्स को भी, कीड़े जो भी होते हैं, दे हैव द राइट टू लिव. साथ में उनके साथ रहना ही है सब. दैट इज कॉल्ड द हार्मोनी, दैट इज कॉल्ड द को एग्जिस्टेंस. क्योंकि ये इंसेक्ट्स जो है, they are very much related in the nature to recycle things. हर एक इंसेक्ट, हर एक एनिमल, they are interdependent. आप लोग ध्यान से सोचिए, ध्यान से आप लोग सुना होंगे एंड आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस भी होंगे. They are all interrelated. अगर ये कोई एनिमल कोई मार लिया और एक्सटिंक्ट हो गए, then you will have the problem with some other animals. इतने ज्यादा हो जाएंगे कि you will really face a much problem. इसलिए ये सब जो है वो animal order जो है वो, they are very well maintained in the nature. If you try to kill one, the other will come up. There will be a problem, or they will completely extinct. पूरा animal के extinction हो जाएगा धीरे धीरे. Then it will be a big problem. Now we have to go with growing food or crops in a organic way. That's what 21st century में बहुत सारे जगह पे throughout the world ये अभी start हो चुका है. So like go with the organic farming. Though it will take some time, कुछ time लगेगा, लेकिन ठीक है, फिर भी कुछ तो start हो गया. somewhere you have to start. भी ये हो रहा है. Organic farming से कुछ side effect भी नहीं, like you don't have much diseases, like you will not have any much diseases in terms of its consumption. So organic farming is always right. So always encourage organic farming rather than using these herbs, pests and insecticides. And then second most important thing, wastage of food. कभी भी फूड वेस्टेज मत करना प्लीज. स्टूडेंट्स, आप लोग हॉस्टल में जाएंगे सून, वहां पे एंटर होंगे, you'll have admission there, but वेस्टेज ऑफ फूड कभी भी मत करना प्लीज. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं मेरा एग्जांपल ही बता रहा हूँ. आई टेल माय ओन एग्जांपल. जब मैं पीएचडी कर रहा था, हम लोग खुद स्टूडेंट्स मैनेज कर रहे थे हॉस्टल का. एवरी मंथ इट यूज्ड टू बी 1800 आते थे एक महीने के, हर एक स्टूडेंट का. हमेशा स्टूडेंट्स ये सोचते थे कि हम लोग इतना क्यों हो रहा है, इतना क्यों हो रहा है. हम स्टूडेंट्स मैनेज करते थे, जैसे 5-6 लोग, क्या फूड लेके आना है, कहाँ पे कितना क्या पैसा खर्चा होगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या कहाँ पे क्या कितना खर्चा हो रहा है.
कैसे बचाएंगे, ये सब कैसे बचाएंगे करके कभी इतना ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन सब लोग सोच रहे थे कि कहाँ पे वेस्टेज कितना हो रहा है। तो हम कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि स्टूडेंट्स लाइक कहीं तो कुछ तो हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, लेकिन वो कैसे कंट्रोल करेंगे करके। तो हमारा भी टर्न आए थे हॉस्टल के मैनेज करने में। बिलीव इट और नॉट, आप लोग ये बिलीव करना ही है, 1100 लेके 1800 से लेके हम लोग पूरा कम कर लिया 1200 से 200-300 से बीच में इतना कम कर लिया था हम मंथली एक्सपेंडिचर। देखो कहाँ से 8000 से 1300 तक, सॉरी 1000 नहीं 1800, आई मीन 1800 से लेके 1300 तक, जैसे 500 कम हो गया था एक महीने में, नॉट एक साल में नहीं, एक महीने में। ऐसे देखा तो एक साल में यू कैन सेव 6000, so 6000 is a big amount just only with one hostel. इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, what I'm trying to say here is don't waste food at any given time. हम लोग ये ऑब्जर्व किया था कि हर एक स्टूडेंट जो भी पहला मिले खाना खा रहे हैं, उनके प्लेट में बहुत सारे ऑलमोस्ट लाइक 50-60% खाते हैं, 30-40%, 20%, 10% जो भी है फेंक देते थे डस्टबिन में। मैं जस्ट इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट से, डोंट गो एंड फिल द प्लेट। एकदम प्लेट जो भी खा रहे हैं अपने प्लेट थाली में फिल मत करना, पूरा फूड पूरा थाली में मत लेना। एंड इट्स ऑलवेज गुड फॉर यू इफ यू लीव थोड़ा सा पेट खाली रखना। जैसे you can fill up your stomach till like maybe some 80% like that, ऐसे कुछ मेजरमेंट नहीं है, थोड़ा सा हमेशा पेट जो होता है वो खाली रखना, वो डाइजेशन के लिए अच्छा है कि लिवर, स्टमक, लाइक द इंटेस्टाइन, किडनी सब अच्छे से काम करेगा। इट विल कीप, बिकॉज क्योंकि उनका भी एक लिमिट होता है काम करना। So if you level extend, like if you exceed that one, आपके बॉडी के अंदर के जो पार्ट है वो भी काम करना like कम हो जाएगा। As a result, you will have many problems in regard to health or with respect to many other factors, physically fit or whatever. तो हमेशा ये ध्यान रखना, फूड कभी भी हॉस्टल जाने के बाद कभी भी वेस्ट मत करना। एक बार नहीं तो 2 बार जाओ, 10 बार जाओ, कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्यों 10 बार जा रहे हो। थोड़ा टेबल से उधर तक वॉकिंग करने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा। तो यू थिंक एवरीथिंग इज ऑलवेज गुड टू लीव योर स्टमक लिटिल बिट एम्प्टी, खाली पेट हमेशा छोड़ना थोड़ा बहुत। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार जाओ, कोई आपको पूछने वाला नहीं, लेकिन प्लेट में कभी भी खाना वेस्ट मत करना, फेंकना मत। ऑलवेज फिनिश द प्लेट दैट यू आर टेकिंग, कितना भी, क्योंकि इसमें खाना तो बन जाएंगे थोड़ा मेहनत करने के बाद, लेकिन किसान लोग कितना मेहनत कर चुके हैं, यानी किए होंगे कि वो खाना आपकी प्लेट तक आने के लिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कभी कभी 6 महीने, 8 महीने। So this is all very very important. और एक लेफ्ट साइड में पिक्चर देख लेना, इतने गरीब लोग हैं इनको खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, 2 बार खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर जब वेस्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली दाम बढ़ेगा तो बहुत सारे लोग नहीं ले सकते हैं। अगर नहीं ले सकते तो वो लोग ऐसे ही सोना पड़ेगा बिना खाना। So these are all interrelated. Please don't waste food any given time. तो आपको अगर लेना है तो 2 बार लेना, 10 बार लेना, लेकिन जितना भी है खाना आप लोग फिनिश करना प्लीज। थर्ड थिंग इज आप लोग जो करना है रेगुलर एक्टिविटीज, शाम से लेके रात तक
आप लोग जो भी है, यही में पर्पस है इन लाइफ, अगर वो आप लोग अचीव करना है तो रेगुलर एक्टिविटीज हमेशा चालू करना. गेट अप फ्रॉम द बेड, डू सम मॉर्निंग एक्सरसाइज. इट कैन बी जॉगिंग हो सकता है, कुछ गेम हो सकता है, योगा हो सकता है, जो भी हो सकता है. कुछ लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन वहां थोड़ा बेडरूम से लेके बाहर आ जाना प्लीज. वहां पे मत बैठना, हमेशा के लिए बोल रहा हूँ ये. आके थोड़ा रिफ्रेश हो जाना अपने माइंड में. जेन्युइनली आप लोग कुछ करने के लिए सोच सकते हैं. जैसे कि पढ़ना हो सकता है, जो प्रोजेक्ट हो सकते हैं, कुछ और अदर रेगुलर एक्टिविटीज हो सकते हैं, क्लास जाना, वहाँ पे जो टीचर टीचिंग कर रहा है वो ध्यान से सुनने के लिए. ये सब होने के लिए आप लोग एक्टिव होना चाहिए. अगर ये एक्टिव होना चाहिए तो आप लोग बाहर आ जाना, थोड़ा रिफ्रेश हो जाना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टूडेंट लाइफ, एंड इट्स नॉट जस्ट स्टूडेंट लाइफ, हर एक के लिए ये सब यूजफुल है. तो जस्ट कम आउट फ्रॉम द बेड, प्ले, go to class, study well, listen well, come back again in the evening. आप लोग हॉस्टल में मत बैठो प्लीज, कम आउट, खेलना, रिफ्रेश हो जाना माइंड. कोई आप लोग आपसे पूछेंगे नहीं कि शाम को क्यों बाहर आ रहे हो या सुबह क्यों बाहर आ रहे हो. So don't sleep and be on the bed for long time. You can take rest is also important. Sound sleep जो बोलते हैं, 7 to 8 hours सोना. You just sleep. Sound sleep बोलते हैं उसको, without any disturbance. Come out, play, go to class, listen properly, study the subject, understand, apply the knowledge. That's how you can excel. Now, apart from the regular activities, you have one more thing to understand: acceptance and proceed. हर लोग में, हर आदमी, हम लोग, हर जो भी है ह्यूमन बीइंग्स मिस्टेक करेंगी. ऐसा कोई है ही नहीं कि कोई मिस्टेक नहीं कर रहा. कोई भी हो सकता है, जैसे स्टूडेंट हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, हायर लेवल पे जो हो सकते हैं. बट यू ऑलवेज थिंक दैट वी एक्सेप्ट द मिस्टेक. अगर एक बार आप लोग मिस्टेक एक्सेप्ट करना सीख लिया तो आप लोगों को सीखने के लिए बहुत मिलेगा. अगर ऐसा आप लोग हो गए कि मैं कुछ मिस्टेक नहीं कि मैं क्यों मिस्टेक करने के बाद, देन आपको सीखने के लिए नहीं मिलेगा. मिस्टेक करने के बाद ही कुछ सीखने के लिए मिलेगा. ठीक है? सो ऑलवेज एक्सेप्ट द मिस्टेक. डोंट लाई एनी टाइम, चाहे वो 2 बार हो गलती, 3 बार हो, 10 बार हो, 100 बार हो, 1000 बार हो. But don't lie to the teacher when you are in the classroom, or when you are in the lab, or when you are in the outside in the society. Not only teacher, parents हो सकते हैं आपके साथ में, colleagues हो सकते हैं आपके साथ में, कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो आपके साथ मदद कर रहे हैं, आपके साथ दे रहे हैं. कभी भी झूठ मत बोलना प्लीज. So that is very important in a student life. Accept करो और proceed करो. So that's what is the meaning of the life is. Then you will learn a lot. If you learn a lot, then you will be happy. Then this is about learning. Learning का ये मतलब नहीं कि ये सीख लिया, कुछ वर्ड सीख लिया, ABCD सीख लिया, हमारा खत्म. वो नहीं है. That is not the aim of learning. Aim of learning is to understand completely. सब पूरा अच्छे से समझ लेना. सब जो भी है, सब्जेक्ट हो सकता है, जनरल और कुछ भी हो सकता है. जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ आप लोगों को, लेकिन मेरा मेन हैबिट क्या है, हमेशा एक मैं जो हमेशा पढ़ता हूँ, हिस्ट्री मुझे बहुत ही पसंद है, इकोनॉमिक्स मुझे बहुत पसंद है, और पॉलिटिक्स, ये तीनों मुझे पसंद है. ये तीनों हमेशा अपडेट रहता हूँ. अपडेट इन द सेंस मुझे पसंद है और कुछ नहीं. मेरा हैबिट है, हैबिट समझ लेना. हर एक कंट्री में क्या क्या हो रहा है,
क्या हुआ था पहले, हिस्ट्री, और वो हम लोग सीख के आगे जाके मिस्टेक मत करना। फिर से इकोनॉमिक्स, कैसे कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक्स बढ़ा सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। जीडीपी हम लोग बोलते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो अच्छा हो तो कंट्री अच्छा होगा। जीडीपी के साथ साथ और भी है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। बट ये सब सीखने से क्या होता है, यू विल हैव कंप्लीट ग्रिप ओवर द सब्जेक्ट, एंड देन आप एक बार आप सीख लिया तो आप कोलीग को, आपके फ्रेंड को, किसी और को समझा सकते हैं। समझना और समझाना, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग। समझना, समझाना और प्रैक्टिस करना, ठीक है, ये तीनों चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ वेरी पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। समझना कोई भी चीज के बारे में, खुद समझना, समझाना। अगर किसी को कहीं कहीं होता है ना सोसाइटी में, सब लोग समझने के लिए यानी समझाने के लिए नहीं होगा उनको, लेकिन दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस, तो उनको हम समझा सकते हैं, देन हम लोग सब मिलके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ। तो इसमें आप लोग जब आयु आएंगे, जब क्लास में बैठेंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हम 8-9 लोग हैं, बायोलॉजी में है, इंजीनियरिंग में है। फर्स्ट ईयर जैसे आप लोग आएंगे, बीएससी स्पेशली, आप लोगों का मिक्स होगा, जैसे बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री का भी पढ़ाएंगे, तो इंजीनियरिंग का भी होगा, फिजिक्स होगा, मैथमेटिक्स होगा। जब तक आप ये सब पढ़ रहे हैं, जब तक आप ये सिलेबस में हैं, मैथ्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, साथ साथ में केमिस्ट्री, बीएससी इन केमिस्ट्री ऑनर्स जो भी है, केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स पढ़ना है आपको, मैथमेटिक्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री पढ़ लिया हो गया, नो नो नो, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, इंग्लिश। नम्रता मैडम यहाँ पे है, तो नम्रता मैडम आप एक्चुअली बाद में बोलेंगे ये सब कम्युनिकेशन में कितना इंपॉर्टेंट है करके। तो लर्न एवरीथिंग, communication is also equally important. Learn everything and then you will excel in life. So when you start learning something, कोई किसी को भी easy नहीं है। Suppose when I'm learning economics, मुझे कभी नहीं लगता कि मैं economics पढ़ूंगा करके जैसे समझ पाऊंगा करके, लेकिन अभी मुझे बहुत easy है। So starting पे क्या होगा, it will be very very difficult। कोई भी subject, even chemistry भी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मैं केमिस्ट्री पढ़ने के लिए स्टार्ट किया था बहुत ही मुश्किल हुआ था, लेकिन वहाँ पे एक एडवांटेज था, केमिस्ट्री जो मुझे सिखा रहा था टीचर बहुत ही अच्छा था, यानी वेरी इजी वे ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री, वेरी इजी वे ऑफ टेलिंग केमिस्ट्री, साथ साथ में वो जोक सुनाता था, एंड दैट्स द वे यू विल लर्न। सो यू स्टार्ट लर्निंग द सब्जेक्ट, दैट इज द लव योर सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो लव योर सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट प्यार करना, देन यू विल अंडरस्टैंड, यू विल इजीली लर्न द सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, टीचर चाहे टीचर थोड़ा बहुत चीजें नहीं समझ सकता है, समझा सकता है कभी कभी, क्योंकि नए टीचर होंगे तो उनको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली उसमें कोई गलती नहीं। लेकिन जब आप सब्जेक्ट प्यार करेंगे, जस्ट इफ यू लव द सब्जेक्ट, यू विल डेफिनेटली लव द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट। सेकंड थिंग इज, इट्स ऑब्वियस दैट कभी कभी सब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आएगा, क्या करना पड़ता है, जाओ कैंटीन, काफी चाय पियो, स्नैक्स ले लो, थोड़ा बहुत 10-20 मिनट फ्रेंड्स के साथ चैट करो, देन your fresh, your mind will become fresh, obviously then you will again go to class, you will start learning. That's how some of these things you can do it, and then you love the teacher, that's also very important. कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, so these are all easy, some of the things no that you आप लोग प्रैक्टिस करना है। टीचर से like you love the teacher, then you will understand the subject very easily. So these things are very important
when you are learning. Then that is very, very important. One more thing. So these are all important. So this is also very much important. आजकल की like work, it can be under work, can be under even when you're having life, like you're enjoying. You will see the usage of internet a lot. Like recently नहीं बहुत थोड़ा बहुत पहले एक वर्ड एक लेक्चर आया था, एक स्पीच इसमें हार्वर्ड MIT दोनों स्पॉन्सर करके एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स है ना, वो वाला व्हाट इज द बैड इफेक्ट ऑफ यूजिंग एक्सेसिव इंटरनेट. इंटरनेट यूज करना है हमको, मोबाइल यूज करना है, लेकिन जितना चाहिए उतना यूज करो. डोंट unnecessarily sit on the WhatsApp messages, Facebook messages, then you will have problem. So minimize the usage of internet. Spend some time with the family, friends, some other colleagues, some other people around you. Then you will have again a good prosperous life. So this is very important, to be away from the internet more. I mean, like, be away from the internet. जितना चाहिए उतना internet use करना, not much. Then you have one more thing to decide. यहाँ पे है, हर चीज में आप लोगों को पता ही होगा right क्या है, wrong क्या है. So when you are learning something, you always put a question mark, big question mark for yourself कि ये कैसे होगा, क्या होगा, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. And वो प्रोसेस पे आप लोगों को मिल ही जाएगा सोल्यूशन. राइट एंड रॉन्ग आपको चूज करना है. राइट, डोंट गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन. जैसे कुछ अचीव करना है, कुछ सीखना है, कुछ सब्जेक्ट, शॉर्टकट में मत जाना. ऑलवेज लर्न डीपली द सब्जेक्ट. एक बार आपको सीख लिया अच्छे से डीपली, देन 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 100 साल के बाद भी वो आप माइंड पे याद रहेगा. फिर से कोई वहां पे जाके फिर से रिसर्च करने का जरूरत नहीं रहता. इसलिए समझना अच्छे से, then you will understand. That's what is the questioning yourself. इन ये पढ़ने पढ़ाने में नहीं है, हर चीज में, जनरल चीज, जनरली बोल रहा हूं मैं. राइट एंड रॉन्ग यू कैन इजीली मेक आउट. एंड जहां पे राइट है वहां पे वो पकड़ के रखना, और वो डायरेक्शन पे जाना. जहां पे रॉन्ग है, लीव दैट एट द टाइम. डोंट मूव इन द रॉन्ग डायरेक्शन. आजकल की डेट में ये भी और एक प्रॉब्लम है, एक काउंसलिंग. काउंसलिंग का कुछ मीनिंग ही नहीं है एक्चुअली. देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस काउंसलिंग. भाई जहां पे लोग कुछ गलत करके या कुछ रॉन्ग डायरेक्शन पे जाएंगे, तो ही ये काउंसलिंग की जरूरत है. अगर सब राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो इस काउंसलिंग का कोई जरूरत ही नहीं. हर एक को सोचना है you are very much confident, you can do the work. बस इतना ही सोचना है, yes I can do the work, I will do the work. and ऐसा नहीं कि कोई एक बोल दिया हम लोग फॉलो करेंगे. no, everybody we have brain, everybody we have got qualities, we have very good thinking power. तो आपको इतना ही सोचना है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है. एंड इफ यू गो इन दैट राइट डायरेक्शन, यू डोंट नीड एनी काउंसलिंग. सो योर माइंड शुड बी वेरी स्ट्रांग. ऐसा नहीं कि हम लोग बनाना है, ऐसा कुछ नहीं. यू आर ऑलरेडी स्ट्रांग, यू आर द लीडर, यू कैन डू इट. यू हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस. ऐसा नहीं कि कोई कुछ लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ. नो, वो रिमूव फ्रॉम योर माइंड, रिमूव फ्रॉम योर थिंकिंग. yes, only thing is you can do it. Yes, I will do it, and you can do it. That's what is exactly this leadership qualities and all. So there is, for me, there is no leader. Everybody is a leader. Assume that everybody is a leader, no follower. So if everybody is leader, everybody can process. I mean, everybody can prosper.
That's what is my thinking. So you proceed accordingly, then you will have a great time. So then one more last thing. There are many things, but at least important things I covered. Recognize importance of all the people in the life, all in the society. चाहे वो soldier हो, Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force, जो भी है. Always remember the contribution of them to the society, because of whom we are happy. Just again one more picture. Doctors, nurse, everybody is important, but I just only put some. यहाँ पे कुछ लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बस और कुछ नहीं. यहाँ पे everybody is important in the society. That's what I mean. Recognize importance of all the people in the life. All the people. ऐसे नहीं कि कुछ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, but of course ये कुछ जो भी है ज़्यादा society के लिए they are very much helpful. Either it can be soldiers, doctors, engineers, teachers हो सकते हैं. Again, daily workers, because of whom हम लोग अच्छे से रह रहे हैं. Maybe in terms of constructing home, maybe in terms of constructing roads, maybe in terms of constructing bridges, maybe in terms of materialistic things, cars, buses, trains, rockets, everything. Everybody is involved in this. And maybe even यहाँ पे नीचे जो एक पिक्चर है, farmers, किसान लोग जितना मेहनत करके महीने करके मेहनत करके हमारे लाइक हम लोग जब हॉस्टल में बैठते खाने के लिए हमारे टेबल के सामने खाना रेडी रहता है, उसके पीछे बहुत सारा मेहनत होता है. सो रेस्पेक्ट ऑल द पीपल इन लाइफ, रेस्पेक्ट एवरीवन इन द सोसाइटी, देन यू विल हैव great and happy life. So there is one more thing along with that GDP, gross domestic product. We have one more thing to see यहाँ पे, gross national happiness. So this is one of the things a country can be measured. In addition to the gross domestic product, gross national product happiness, which is always measured to say how country is, like in terms of its achievement, in terms of its happiness. So it sometimes started nearby our country, जैसे भूटान है ना इंडिया पे बगल में, वो स्टार्ट किया था ये, and ये जाके स्प्रेड हो गया, हम like it has spread all over the world. जैसे अभी कुछ कंट्रीज में नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब कंट्री जो है they are in the highest rank. So in terms of gross national happiness. So this can be achieved when you follow all these things. So students, please always remember that you can do it. It's not a never think that you cannot. So always remember that you have the confidence, you have the leadership ability to do it, and you will do it. And this is what I want to say. Finally, one more thing is that, are we really living harmoniously with our Mother Earth? So always question this one. If you question this one, you will get the answer. So हम लोग, we do not inherit the earth from our ancestors. हम कहीं कुछ लिया नहीं, लेकिन हमारे बच्चों लोगों से ये लिया है. हम कहीं से आया नहीं, ये दिया है नहीं, बच्चों लोग दिया है. So always remember that when you are taking something from someone, it's your response, it's our responsibility to give it back in the same manner, the same phase, the same way, rather than destroying something. उसको destroy करके देने में कोई मतलब नहीं. At least हम लोग सुधर नहीं सकते हैं, लेकिन at least in the same format, the same way हम लोग वापस दे सकते हैं. Otherwise हमारे बच्चों जो है next generation, they will be cursing us a lot. So don't go to that extent. And remember always one more statement from J.R.D. Tata. Sir J.R.D. Tata is always, you are only trustee of money and it always changes hands. Okay? When you are successful in life, give it back to society that gave you a lot. Always remember, please, we always be successful in life. Everybody will be successful, but we should remember to give it back to the society. So that's what Sir J.R.D. Tata is doing. A very honorable, very great personality in Indian industry.
So this is, so because we all share this planet Earth, we must learn to live in harmony and peace with each other and with nature. So this is not just a dream, but a necessity. कि हम लोगों को ये करना ही है. There is no option. So more slide may be there. I don't know. I'm not sure. Yeah. So coexistence. This is what we have to coexist. There is no option. So let us practice the same thing, whatever that we learned. So the bottom line is always in this UHV is happiness lies in relationship, not in luxuries. Okay? So always remember that you maintain your relationship with teachers, with doctors, with engineers, with your parents, with everybody in the society. Nobody is less, nobody is high. That's hierarchy. So everybody just maintain the relationship, then you will feel that happiness. So thank you all for your kind attention. So madam, thank you very much for listening to me and having questions. Thank you all. Sir, it is always pleasure because एक दिन में ये सुन के human values का हमेशा रहता नहीं, बार बार याद दिलाना पड़ता है कि we have to be in happy and live in harmony with earth, mother earth sir. और जो JRD टाटा सर ने बोला कि जो है हम ट्रस्टी हैं, तो ये बात सच्ची है. आपकी प्रॉपर्टी भी देखिए सर, you can unshare the screen so that we can have clear view. Yes. And for the sake of students, I will share with you, though it has been shared with you, the schedule for tomorrow and the coming days, as well of the induction also. Okay, induction may be aapka. And sir, before I say something, there is one question which we can handle, though it has been answered very well. The question is from Akash Pandey. बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि why is it necessary to teach harmony and human values to humans? क्योंकि आप humans को ही human values बता रहे हैं और नेचर के साथ हार्मनी की बात कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी ह्यूमंस करते हैं. तो व्हाई इट इज नेसेसरी? So very good question. Definitely very good question. So I'll answer this one in a different way. Akash, I think you can see in a day-to-day life, what are all the problems we are facing? Yes, we are following, but what I mean to say, everyone should follow that one. Yes, the last statement that I said, like Sir JRD Tata, he is doing a great thing. So definitely we need to follow like that. Everybody should follow it. So if everybody follows it, irrespective of human beings, so we are all human beings, but everybody need to follow that one. So how many we just question ourselves, we should question ourselves about how many we are following all these things in life. So if we are not following, then definitely we will face problems that we are facing right now, maybe in terms of existence, how badly we are behaving with the Mother Earth, how badly the things are going wrong in a wrong direction. So all these things, if you you can see practically in front of your eyes. So that's what I want to say. You need to teach this one. समझना और समझाना यही होता है, and then practice it. So it is all happening in the society. So this is nothing wrong in that one. Yes, there is a wrong, but I don't say that it's completely wrong. But these things happening, they are happening, and then we need to follow it up accordingly. So we need to have, when there is a question and there is a problem, we can also find a solution. So that's what is my question. So my solution is you have the question, you have the solution, and follow it. You have some problem in the society, and at the same time you will get the solution and you follow it. So that's what is my saying. Thank you, Prakash sir. Adding to what you have said, with your permission, sir, जो आपने आकाश बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि क्या ह्यूमन वैल्यूज ह्यूमंस को पढ़ना चाहिए क्या? अगर आप कोविड का देखें, पेंडेमिक का, वो किसका आउटकम है? इट इज एस्टैब्लिश्ड नाउ कि इट वाज ह्यूमन एक्टिविटी ओनली, और ह्यूमन एक्टिविटी ह्यूमंस के अगेंस्ट में की गई काम, राइट? अभी आप अफगानिस्तान में देख रहे हैं, डिस्टर्बेंस है, ह्यूमंस ही वो लोग भी, बट क्या ह्यूमन वैल्यूज को उन्होंने प्रोटेक्ट किया है? क्या उन्होंने ह्यूमन वैल्यूज को ध्यान रखते हुए ये जितना भी वहां पे हो रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, ठीक है? आपने बीच में
अजरबैजान और उसके बीच में भी आपने युद्ध देखा, राइट? आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपने नहीं देखा बट आपने सुना है जो वहां पे हुआ, या आज हम लोग डिस्टर्बेंस फेस कर रहे हैं सिंस पार्टीशन को भी इंक्लूड कर लो आप। क्या वो सच में ह्यूमन वैल्यूज का एक एग्जाम्पल था? ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा कि ह्यूमंस को ही बताना पड़ रहा है कि आप ह्यूमन वैल्यूज के साथ में आपको जीना है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपको उसके साथ रहना है। तभी ये को एग्जिस्टेंस सर जो बता रहे हैं नेचर के साथ में हमको रहना है। आज जो पेंडेमिक की सिचुएशन हुई है या जो इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें इतना पोल्यूशन निकल रहा है, क्या हम हार्मोनी कर रहे हैं नेचर के साथ में? in the rat race of advancement, in the rat race of being economically developed, financially more viable, उसका हमको रिजल्ट और उसका जो एक फ्लिप साइड है, बाय प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है, कितना हजार्डस है जो ह्यूमन हेल्थ के कॉस्ट पे हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। यू नो वेरी वेल, आप लोग अब साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये सब ग्रीन हाउस का इफेक्ट क्या है। हम ही साइंटिस्ट होके हम आगे, आप लोगों में से कोई साइंटिस्ट निकलेगा, आप लोगों में से ही कोई बड़ा लीडर निकलेगा, तो आप लोगों को पता पड़ना चाहिए कि हम लोग सच में हार्मोनी के साथ जी रहे हैं। आज वाटर लॉगिंग की फेस हम लोगों को हमेशा एवरी सेकंड डे हमको फेस करनी पड़ रही है। कल भी बहुत बारिश हुई है, क्यों हो रही है वाटर लॉगिंग? बारिश तो चाहिए हमें, लेकिन लॉगिंग क्यों हो रही है? क्या हमने वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से किया है? तो टू स्टे विद द हार्मनी विद नेचर, ठीक है, एंड हैप्पीनेस का भी सर ने बताया, ठीक है ना, और ह्यूमन वैल्यूज के बताया, क्या हम सच में उसमें इंटैक्ट है? आप बोलेंगे मैं तो हूं, लेकिन आप हो लेकिन सामने वाला नहीं है, तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंसिटाइज करने की नहीं है, उनको अवेयर करने की नहीं है? आपको लगता है कि उनको ये ट्रीटमेंट या ये डोज मिला होगा? नहीं मिला होगा। तभी हम एजुकेटेड लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। राइट आकाश, वेरी वेल सेड। दिस इज सच अ वियर्ड थिंग मैम, दैट an animal doesn't need to be taught how to be animal but does need to learn humanity। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आकाश, 101% आपके वर्ड सही हैं। जितनी भी निर्भया कांड हुआ था उसमें अमिताभ बच्चन का स्टेटमेंट आया था कि इवन एनिमल्स में भी ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। जो आप बॉडी को, आप ह्यूमन बॉडी को इस तरीके से आप म्यूटिलेट करते हो, आप बिल्कुल सही कहा आकाश कि एनिमल्स को बताना नहीं पड़ता कि एनिमल वैल्यूज क्या है, लेकिन ह्यूमंस को बताना पड़ता है ह्यूमन वैल्यूज क्या है। एब्सोल्युटली राइट, यही सेंसिटाइज करना है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं है, इट इज बियॉन्ड क्लासरूम। दैट इज व्हाट इज द कमिटमेंट ऑफ इंद्रशील यूनिवर्सिटी। क्योंकि इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी का आप विजन और मिशन देखेंगे तो आपको एक, अपार्ट फ्रॉम गिविंग यू सब्जेक्ट नॉलेज एंड डिग्री, you have ultimately, you owe a lot to the society to give back. Service to mankind is the ultimate aim of knowledge you acquire, whether it is from university or from the organization where you will join or you will start your business. You have to pay back to society because you have been in this earth, because of the society which has been. बहुत सही कहा प्रकाश सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने एक बहुत पर्टिनेंट टॉपिक के साथ में वी हैव स्टार्टेड द इंडक्शन प्रोग्राम एंड वी आर स्ट्रांगली गिविंग ए मैसेज टू इंद्रशीलाइट्स नाउ। आप सब इंद्रशीलाइट्स हैं क्योंकि इंद्रशील यूनिवर्सिटी को आपने ज्वाइन किया है। सो वेलकम टू दिस। आपको कल का सेशन पता है, कल का कैडिला से आपको पता ही है कि इंद्रशील यूनिवर्सिटी इज अ कैडिला इनिशिएटिव, एजुकेशन इनिशिएटिव। सो कल कैडिला के लीडर आ रहे हैं मिस्टर प्रदीप सिंह राठौर, और उनका कल है बहुत अच्छा सेशन है, वेलकम एंड ईयर अहेड। मैं उनका टॉपिक बता रही हूँ आपको, वेलकम एंड ईयर अहेड उनका टॉपिक है। वो आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आ रहे हैं, 12 गिफ्ट्स। सो बी रेडी फॉर एक्सेप्टिंग दोज गिफ्ट्स। प्रदीप सर कल रहेंगे, मैं भी आपके साथ में रहूंगी, और सैटरडे को आपके पास पूरा शेयर किया गया है प्लान। सैटरडे को मैं आपके साथ रहूंगी कि अभी तक तो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन कितना इम्पोर्टेंस है, आपके साथ में इंटरेक्टिव सेशन रहेगा।
कम्युनिकेशन का। मंडे को आपके साथ में ह्यूमन वैल्यू, एनिमल एंड ह्यूमन। सर, वी आर गोइंग टू हैंडल दिस। लाला चौधरी हैज कम अप विद वन क्वेश्चन सर, हम हैंडल करते हैं। और मंडे को आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का रहेगा। आपको लगेगा कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड कर सकते हैं क्या? हाँ, देखिएगा आप किस तरीके से, क्या टूल्स हैं, क्या तरीके हैं, उसको कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डिंग किया जाता है। उसके बाद आपका एक टाइम मैनेजमेंट और रिसर्च के ऊपर स्किल्स जो हैं डेवलप करने के लिए हमारे 2 फैकल्टी हैं, वो आएंगे। और लास्ट बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है कि कैसे कलर, कैसे पर्सनालिटी, कैसे ग्रूमिंग, कैसे एक एक वर्ड आपके कैसे आपकी पर्सनालिटी को पूरा इम्पैक्ट करते हैं। तो विल हैव वेरी फेमस इमेज कंसल्टेंट हश्मिता आहूजा, वो आपको लास्ट सेशन लेंगी। और फर्स्ट को हमारा प्रॉपर इंडक्शन होगा, जिसमें हम सारी फैकल्टी के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। और हमारा बहुत सारी जो है एकेडमिक रेगुलेशंस है, एग्जाम सिस्टम कैसा है, वो आपको उसका सबके साथ में आपको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। फोर्थ को वी आर वेलकमिंग यू ऑन द कैंपस। बी रेडी कि आप अपना टैलेंट जो भी है बताइएगा कैसा है। क्विज रहेगा, एक्साइटिंग प्राइजेस रहेंगे। सो एक हफ्ता तो हमारा ये इंडक्शन ही चलेगा, एंड देन यू विल गेट इनटू द मेन स्ट्रीम। आपके जो है क्लासेस हैं, आपके लेक्चर्स हैं, उसमें रहेगा आपको। सो एक दिन फिजिकल रहेगा 4th को। सो यू ऑल आर वेलकम ऑन दैट। चैट बॉक्स में भी आई कम विद दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन वैल्यू, एनिमल एंड ह्यूमन। लाला जी, आप फिर से इसको बताएंगे? ह्यूमन वैल्यू, एनिमल एक ही वर्ड है? Prakash sir, if you are there to handle yes, ma'am. this. Yes, ma'am. Yeah, there is question, if you can crack this, sir. ह्यूमन वैल्यू, एनिमल एंड ह्यूमन। I think तीन मेरे ख्याल से कॉमा होगा बीच में सर। ह्यूमन वैल्यू क्या है, एनिमल क्या है, और ह्यूमन क्या है? चौधरी जी, आप अगर मैं सही बोल रही हूँ तो आप यस खाली बोल दीजिए। मेरे ख्याल से आपको 3 क्वेश्चंस हैं, ह्यूमन वैल्यू, एनिमल और ह्यूमन। इन 3 के बीच का डिफरेंस पूछा है आपने। I think if I'm correct, madam, maybe you are correct, comma between the human value and animal. So there is no need to teach an animal about the value. So human values are always taught to the humans. हाँ, इन्होंने हाथ रेस किया है। लाला चौधरी आप जो हैं, हाँ इन्होंने सही बोला, ठीक है सर। वी आर राइट इन इंटरप्रेटिंग दैट द क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन वैल्यू, एनिमल एंड ह्यूमन। यस सर, प्लीज। So human value is basically taught to the human being, we all, I mean. So animal doesn't need it because animal lives rightly, because there is a difference in thinking between a human being and animal. So we always go with extra mile, and we always exploit the things. That's what happens with a human being. So human value is always to humans, and animal doesn't need any human values of there. I mean, animal goes in the nature as such. It doesn't need anything further. So that's where we need to learn the values. परफेक्ट सर, इवन आई गॉट योर वैल्यू की एनिमल्स को ह्यूमन वैल्यूज की या वैल्यूज की जरूरत नहीं। उनका तो जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको पढ़ाने, हालांकि उनको भी ट्रेन किया जाता है तो वो हमसे बेहतर साबित होते हैं। वेदर इट इज लॉयल्टी इन द डॉग्स और लव एंड केयर विच द कैट्स गिव। पेट्स जो आप लोग संभालते हैं, कुछ लोग तोते पालते हैं, तो उनको जितना सिखाया जाता है वो उनका सीमित है, और वो अपनी पूरी जितना उनको ट्रेन किया जाता है तो वो ट्रेन किए जाते हैं और वो उसमें बिल्कुल पूरे खरे उतरते हैं। लेकिन ह्यूमंस बार बार अपनी वैल्यूज भूल जाते हैं। तो ये सतत एक प्रयास होना चाहिए, एक निरंतर प्रयास होना चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज का याद दिलाना चाहिए। वेरी गुड। एक क्वेश्चन आया है, बिल्कुल बिल्कुल कोशा उपाध्याय आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, वी स्टिल हैव टाइम। जी पूछिए। उनका है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू मेंटेन अ रिलेशनशिप बिटवीन अस एंड नेचर। Yes, that's a कौन से तरीके हैं सर? हाँ सर, yeah. कुछ तरीके बताइए कि हम नेचर के साथ कैसे रिलेशनशिप बना के रखते हैं। So just simple example, I would say,
So when ever you are coming across with any animal, any plant, leave it as such in the nature. Never go in its way. So you always हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे ना, the animal के place में हम लोग encroach कर लिए कर. So when this happens, there will be automatically there will be disturbance in the nature. जैसे आप कहीं सपोज सिंपल एग्जांपल एक गोवा है, गोवा प्लेस नहीं है जो हम लोग खाते हैं, गोवा हमारे घर के पास है सपोज एक पेड़ और वहां पे पैरेट तो आके खा रहा है. इट्स राइट ऑफ द पैरेट टू ईट दैट फ्रूट. इट्स ऑलवेज राइट. हम लोग क्या करते हैं, उसको भगा देते हैं. उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, बार बार एक्चुअली वो अगर खाने के लिए छोड़ दिया, वही आके वही फल वही खाते रहता है. वो अगर वो उसको भगा दिया, बाद में आके कोई और फल पे चला जाएगा, सब सारे के सारे फल खराब हो जाएगा. जिसमें मैं ही एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. और इफ यू टेक एनी अदर एग्जांपल, देयर इज सम एनिमल, सम लायन और टाइगर और डियर एनीथिंग, एलिफेंट. हम लोग वहां पे जाके वो उनके लैंड ऑक्यूपाई करके एंड वी विल स्टार्ट लिविंग देयर. हम इतना भी नहीं सोचते कि दे आर आल्सो इक्वली राइट टू लिव ऑन द अर्थ. So that is the difference between the animal and a human being. So हमको थोड़ा सा extra brain दिया हुआ है, doesn't mean that you are going to harm the other animal present on the earth. So they also equally have the right to live on the earth. So इतना समझना. Suppose if you understand this statement, then there will be never a disturbance in the nature and our relationship is always maintained. So everybody on this earth have the right to live. It's not just a human beings. So you think this way, then you will get the relation. I mean, like you will get the answer. Thank you. Thank you, Prakash sir. And even there is reflection from again Akash, saying that animals are good in following nature's rule than humans. Bilkul sahi ka Akash. Yes. And it is so because humans have an intellect which is mostly selfish and animals lack it. Very nice. In a way, we have appreciated animals. Yes. But very nice. But let us live up to the expectation of humans' intellect, or let us not demean ourselves. Let us uphold these human values, so that we are just to be called as humans. ठीक है ना? Let's be superior because we are superior than animals. So वो हम human values दिखाएंगे तो we'll remain ahead of any kind of nature, and we'll love nature and nature will love us too. And this is how it will go together. Thank you so much. And we are on the verge of closing today's session. We'll wrap up, and please be ready for talent show which will be physical. किसी भी प्रकार का टैलेंट है आपको, गाने का, डांस का, या मिमिक्री का, या स्टैंड अप कॉमेडी का, या स्टेज आर्ट कोई आपको आती हो, तो हम आपको लिंक देंगे, आपको हम ईमेल आईडी देंगे, हम आपको फोन नंबर देंगे. वहां आप अपना रजिस्टर करवाइएगा और आप लोगों के लिए स्पेशली शो होगा और एक क्विज भी होगा. ठीक है? सो गियर अप फॉर दैट. कैंपस में हम आपको बुला रहे हैं. ठीक है ना? चौधरी जी, we can take, sir, if you with your permission, we can take last question again from Lala Chaudhary. That is, what is the best nature and environment human value? एक कोई क्वालिटी बताइए सर, नेचर और एनवायरनमेंट की ह्यूमन वैल्यू. Sir, I would like to attempt, that is care, being Yes. sensitive. Yes. I yes. think that is the only best human value towards nature and environment. वो है care and sensitivity. Yes, ma'am. Yes. Definitely, yes. क्योंकि वो मुझे ही वापस आएगी. It is Yes. nothing just like a mirror, कि जैसा मैं दिखती हूँ, मैं वैसे ही मुझे मिरर मुझे दिखाता है. तो नेचर को हम जैसा केयर और सेंसिटिवनेस करेंगे, वही मुझे वापस मिलेगा. 100%. Yes. Yes, ma'am. 100%. I hope I have answered Chaudhary, Lala Chaudhary. So
wrapping up. If you have any other queries, tomorrow be ready, same time, 11 o'clock. We'll have session with Pradeep sir and you will really enjoy. Cadila के बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं लर्निंग एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में, लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, तो आप लोग उसके लिए तैयारी है। 11 से 12 हम रहेंगे और वो बहुत अच्छी तरह से आपको संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में आपको समझाएंगे। सो विद दिस वी एंड हियर। नमस्कार, जय हिंद। Indrashil University wishes you safety and health also. Thank you everyone. Thank you all. See you again. Prachi, we can wrap up now. Yes, ma'am. Thank you so much.